हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स माय डे 2 इन क्लाइजरस्लाउटन और आज मैं और मेरा भाई लग्जमबर्ग जाएंगे। It's 9 a.m. early in the morning. We were already getting late to catch the train. तो हम नाश्ता किए बगैर ही चले गए. But there at Banuf, we grabbed a coffee and a croissant, which is my favorite. ट्रेन में काफ़ी रश था, मेरा भाई खड़ा ही रह गया. But I got a seat, so I'm enjoying my seat. गाइस हमारी 2 ट्रेनें कैंसिल हुई है. अभी हम ट्रियर में है. नेक्स्ट ट्रेन 1 घंटे बाद है, तो थोड़ा सा हम ट्रियर घूमते हैं. मौसम भी इतना कोई ख़ास नहीं है, बट आई डोंट नो, I can expect this from TV. I can expect this from the train. To be honest, दिन बहुत मनहूस था. ट्रेन हमारी ऑलरेडी 1 घंटा लेट थी और बहुत सर्दी भी थी. और नेक्स्ट ट्रेन हमारी आई और फिर उसमें इतना रश था, मेरा भाई खड़ा रह गया. इस बार मैं भी खड़ी रह गई थी. बट फाइनली हम लग्जमबर्ग पहुंच गए और लग्जमबर्ग आते ही लगा कि अच्छा कि वाज अ गुड डिसीजन. दिन भले ही जितना भी बुरा शुरू हुआ, बट इट वाज वर्थ इट बिकॉज लग्जमबर्ग इज़ a place worth to see. One of the coolest things about this country is that all public transport is completely free. Buses, trams और trains इनके बहुत stunning है, but that's all free. I think Luxembourg is one of the most underrated gems in Europe. It is one of the smallest cities in Europe, but don't let its size fool you. It is also one of the richest countries in Europe. ये Germany, France और Belgium के दरमियान आता है. And Luxembourg has 3 official languages: French, German और Luxembourgish कहते हैं. I guess इसको often इसको green heart of Europe भी कहा जाता है because it's very beautiful. And I loved everything about Luxembourg. I loved the vibe, the natural beauty, and I loved how it is differently beautiful from other parts in Europe. I mean, it's different. Just like public universities in Germany, the University of Luxembourg also charges no tuition fees for international students, and students are only required to pay an enrollment fee of between 200 euros and 400 euros at the beginning of each semester. जो मैं भी देती हूँ हर semester के beginning में 330 euros semester fee है. तो Luxembourg University भी public university है. Everyone who dreams to come to Europe, Germany को सिर्फ अपना गोल ना बनाए, क्योंकि यहाँ पे saturated काफ़ी है, international students already काफ़ी है, तो आप Luxembourg भी apply कर सकते हो. Cost of living यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन minimum wage as of 2025 is about 2,570 euros per month for a full-time unskilled worker and around 3,084 euros for skilled workers. Part-time jobs for students usually pay 13 to 18 euros per hour depending on the job and your skills and age. So अगर आप ड्रीम कर रहे हो यूरोप में पढ़ने का, Luxembourg University could be your best choice. Free public transport means easy travel and no extra expense. Safe, peaceful और diverse environment. Part-time jobs और internship भी मिलती है for extra experience and income. Location इतनी perfect है कि weekend trips to France, Germany या Belgium are just a train away. Low tuition fees और English taught programs make it more accessible than you think. And Luxembourg छोटा ज़रूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी है यहाँ पे. So guys, जैसे आप सब देख सकते हैं, हम अभी लग्जमबर्ग सिटी में हैं. पीछे हमारे आज स्टार्ट था और इर्द गिर्द हमारे सारा फोर्ट्रेस है. इन फोर्ट्रेस को पहले गिब्राल्टर ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता था. और लग्जमबर्ग में एक बात यह है कि यहाँ के जो बाजार वगैरह में है, मार्केट वगैरह में है, फ्रेंच बोला जाता है, बट इनका जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारा जर्मन या डॉइच लैंग्वेज में. और उसकी वजह यह है कि इनके हिस्ट्रिकल और कल्चरल टाइज फ्रांस से मिलती है, और फ्रांस इनके बिल्कुल ही नज़दीक है. यहाँ से थोड़ा आगे जाके फ्रांस आता है, और फ्रांस भी हम इंशाल्लाह कभी मैं जाऊँगी, वहाँ पर भी व्लॉग बनाऊँगी, पेरिस में. बट या लग्जमबर्ग हैज़ ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स लार्जर नेबर्स जर्मनी, फ्रांस एंड बेल्जियम. इनका जो नेशनल लैंग्वेज है वो तो लग्जमबर्गिश है. यहाँ पे फ्रेंच भी बोला जाता है, जर्मन भी बोला जाता है. While I was in पाकिस्तान, मुझे लगता था कि जर्मनी के पब्लिक यूनिवर्सिटी में सिर्फ फ्री एजुकेशन है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान से काफ़ी लोग जर्मनी आ जाते हैं. बट यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ है यूरोप में, वहाँ पे भी एजुकेशन फ्री है. जैसे ऑस्ट्रिया के पब्लिक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन फ्री है. अभी लग्जमबर्ग में गई तो मैंने थोड़ा सर्च किया उसके बारे में. लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी में भी ट्यूशन फ़ीस नहीं है. जैसे जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम है सेम टू सेम, वहाँ पर भी फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से सेम टू सेम है. सो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूँ. अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो यूरोप की साइड पे, तो सिर्फ जर्मनी ना अप्लाई करें, लग्जमबर्ग के लिए भी अप्लाई करें. अगर मैं होती और मुझे पता होता, सो आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ शॉट. और लग्जमबर्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल दैन जर्मनी ऑफ कोर्स. थोड़ा लग्जमबर्ग घूमने के बाद मेरी सोशल बैटरी डेड हो गई. मेरी शक्ल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी हालत हो गई है. हम वापस घर की तरफ जाने लगे थे. एंड देन नाउ आई एम इन अ कैफे इन बानोफ वेटिंग फॉर द ट्रेन. और हमारा भाई, आई थिंक ही वेंट टू टेक एन ऑर्डर. मौसम की वजह से इतना खास एंजॉय नहीं कर पाए, बट स्टिल इट वाज वर्थ इट. आई वाज सो हैप्पी. बहुत अच्छी पिक्चर्स आई मेरी. अब देखो, अब मैं घर जा रही हूँ, एक अगला दिन है, तो देखो मौसम कैसे, धूप कैसे निकल आई है. एनीवेज, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है. अपना बहुत ख्याल रखें. एनी क्वेश्चंस प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन. फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब एज दे से फॉर मोर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड चूज.